Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we are here obviously for you to help in your competitive examinations, in your school examinations, and various competitive examinations. So, what we will be studying for the 6th, 7th, and 8th, we will be covering Olympiads as well as your school examinations. And for 9th, 10th, we will be covering NTSC, NSCGS, PRMO, and your school examinations. So for this is what we are going to study. We will be studying for both examinations, school examinations, and for the Olympiad. So this will be a total bonus for you all, right? And for this whole purpose, this team will be helping you. And we will be very glad to help you in this. So what we have to do is we have to study very hard, very smart, and then we will be set, all right? So let's see, if you want any study material and DPP, you can join our Telegram channels. And this is for the 8th class. So your code will be TTB08. You can go on Telegram app, you can join this channel and have your DPPs. Alright, so see, ये तो फिर भी अभी हम लोगों के लिए स्टडी की बात थी कि हम लोग किस तरीके से और क्या स्टडी करेंगे ओलंपियाड्स एंड स्कूल एग्जामिनेशंस. बट फॉर योर हेल्पफुलनेस, आपकी हेल्प करने के लिए, व्हाट वी हैव ब्रिंग टू यू इज दीज packages. You can go on to the talkingtextbooks.in website. You can have the packages on that list out. All right, there are various packages. You can choose whatever you want. So this is an example of one of the packages. What you will be getting in this package is comprehensive study material. Definitely everyone needs a study material to study. The second thing will be recorded and live classes by the TTP experts. You actually, why recorded means you can watch them at any time. You can study that any time. Alright, and live classes ताकि आप अपने सारे doubts and you can clear all the doubts and the remaining questions you will be having. Alright, and then homework tracking is the most important thing because obviously some of the students do not do their homework. So we must ensure that everyone is doing their homework, so we will be checking your homework too. Alright, and daily quizzes, this is a must because we should know, or you should too know, where you stand out in your class or in your topic, how much topic do you know, how much not, that's it. And next one will be the state-wise periodic test papers of the same pattern. This will test you for where you stand, how much knowledge you have gained. These are the things. So this is the whole package. We will be helping you in your whole thing. Means you will be studying for competitive, right? And there are various students preparing for that too. So you must have a chance to stand it among them. So when you click on the buy now, you will be led on to this page. All right, and this is the page. This is showing your exact amount this package is for. All right, and if you write a code, that's what I am giving you. If you write code CYLIVE, then you will be having a discount of 30%. So it will be obviously benefit for you. This is I, alright, CYLIVE. So this is the code you can use and get that 30% discount, that is 2,700. And then you will be getting your total package will be coming off 6,300. Alright, now click on the buy package. You will be forwarded onto this page. You can choose your payment options from these options and you will set to go. Alright, if you have any query about how to do that, alright, and what are the things or the packages information, you can contact on this number. This is a very helpful one. You can have all the queries solved on this number. Alright, and now we will be studying our chapter. So this is the thing we will be studying for the first. Alright, this is our chapter number 1. And this is mathematical tools. Now what are mathematical tools? Why we are studying it? Because you have never heard mathematical tools in physics book, right? You don't have that chapter in your books. But the thing is, we are fighting for the competitive examination. That's why we should know the mathematical tools before studying physics actually. So in this chapter, we will be studying vectors, scalars, and we will be studying trigonometry, little bit of trigonometry, not that hard one, easy one, alright. And then we will be discussing graphs, how to make them, how to describe them, and how to calculate things from that graph. Alright, so this will be our whole chapter.
and this is the first lecture. In this first lecture we will be learning only scalars and vectors. These two things we will be learning in this whole lecture. So take out your books, take out your copies, take out your pens, all right, and promise yourself that you will be listening to the whole lecture, all right. You will be noting all the things and you will revise it on a daily basis. These are the three things you have to do if you want to stand out among the crowd. So let's see, this is the lecture. Why we are reading this lecture? Because this is an important thing. Mathematical tool is a very important thing. You must know these things, because if you know these things, if you know scalars, vectors, how to make graphs, how to use trigonometric functions, if you know that, then you can excel in physics. Because physics is what? Physics is like totally studying mathematical things all along with laws and theories, right? So we will be studying only two things today, scalars and vectors. Now let's start. This is the thing, lekin. First of all, obviously you have to know what are physical quantities. Alright, so this is the thing, physical quantities. These physical quantities are the things or the quantities which can be measured using the instruments like time. You can measure time using the instrument. Which instrument? Clock, obviously. Alright, and you can measure length using instrument what? Scale, inch tape, alright, and other things too. And you will be measuring your mass with the help of weighing machine. Alright, and you can check out or measure the mass of the things like other things like tomatoes, potatoes. You can use the beam balance. So these are the things, these are the quantities which can be measured from the instruments, and the important thing is they must be following the laws of physics. That's why they are called the physical quantities. Alright, so the thing is, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि क्या करती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, आइदर वॉच, आइदर स्केल, आइदर बीम बैलेंस और थर्मोमीटर, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जिन क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं वो क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटीज़. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट बी नोटिंग इज फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको हम बोलेंगे quantities which can be measured by instruments and follow laws of physics. ऐसी सारी क्वांटिटीज़ जो कि लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती हैं और उनको हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, वो सभी की सभी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है. उन सब का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तुम्हारा मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको तुम वेइंग मशीन की हेल्प से ऑब्वियसली मेजर कर सकते हो. टाइम, तुम उसको क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हो, तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, ठीक है. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पीड है, तुम स्पीड को, तुम्हारी जो गाड़ी में स्पीडोमीटर यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हो, ठीक है. फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को तुम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हो. ये जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें तुम मेजर कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको तुम मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑब्वियसली दे फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स, तो उनको हम कह देंगे फिजिकल क्वांटिटीज़. अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? 6-7 क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था दो कैटेगरीज में, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? पहली थी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो में बांटा था. फर्स्ट वन थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देन सेकेंड वन वॉज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल में हमने उन लोगों को रख दिया था, उन क्वांटिटीज़ को रख दिया था जो कि किसी और से नहीं बनती, जो कि इंडिपेंडेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल टाइम, तुम टाइम को किसी और चीज़ की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते. तुम टाइम को सिर्फ मेजर कर सकते हो एक क्लॉक की हेल्प से, बट क्या तुम किसी बॉडी के मास से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर किसी बॉडी के लेंथ से, या फिर किसी बॉडी के टेम्परेचर से? नहीं. टाइम एक इंडिपेंडेंट है, तुम उसको किसी और चीज़ की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम उसको सिर्फ क्लॉक की हेल्प से मेजर कर सकते हो. तो दैट्स वाई जो टाइम है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अकेला रहता है, अकेला ही रहता है, ठीक है.
इसी तरह की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो सभी अकेले अकेले रहती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको तुम क्या कर सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला जुला के प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई करके उसको नया बना देते हो। कैसे बनाते हो ये मैं तुमको बताती हूँ। जैसे मानो कि तुमने क्या किया, तुमको स्पीड कैलकुलेट करना था, ठीक है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली तुम लोग को फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस को हम सिर्फ स्केल की हेल्प से नाप सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम किसी भी टाइम की हेल्प से कोई लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी बॉडी का, है ना। तो फिर ये एक इंडिपेंडेंट हुई, और टाइम तो इंडिपेंडेंट है ही। तो हमने क्या किया, एक फंडामेंटल लेंथ को उठाया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम को उठाया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और जो नई क्वांटिटी हमें मिली क्या, स्पीड, वो स्पीड हमने डाल दी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। ये कुछ ऐसा हो गया है कि तुम क्या कर रहे हो, सब्जी लेकर आ रहे हो मार्केट से, ठीक है, नमक मिर्च ये सारी चीज़ें अलग अलग लेके आ रहे हो, और उसके बाद तुमने इन सबको कढ़ाई में डाल के मिक्स करके हीट करके तुमने क्या प्रिपेयर कर लिया, पूरे खाने की पूरी जो सब्जी है वो तुमने प्रिपेयर कर ली। सो द थिंग इज, जो इंग्रेडिएंट्स तुमने यूज़ किए वो फंडामेंटल है, ठीक है। उनको जैसे नमक को मिर्ची से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, सब्जी को नमक से कोई लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट हो गई। बट जो फाइनल तुम्हारे पास प्रोडक्ट तैयार हुआ, खाने के लिए जो सब्जी तुम्हारे टेबल पे तैयार थी, दैट इज द डिराइव्ड, बिकॉज तुमने क्या किया, तुमने उन सब फंडामेंटल्स को मिला जुला के उसमें हीट अप करके डिवाइड मल्टीप्लाई कर के तुमने डिराइव कैलकुलेट कर दिया। सो ये थी अब तक की तुम्हारी स्टडीज जो तुमने 6 और 7 में स्टडी किया था। बट ये जो हमने कैटेगरी किया था ये सिर्फ बेसिस पे था कि कोई भी चीज़ कोई भी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फंडामेंटल है, अगर वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि तुम और एग्जांपल ले सकते हो फोर्स का। फोर्स जो है वो मास और एक्सीलरेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें किसी बॉडी का मास चाहिए, तुम्हें वो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए। दैट इज द थिंग कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए वो क्या हो गई, डिराइव्ड हो गई। तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरों पे डिपेंड करे वो डिराइव्ड क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जो खुद से अलग से रहती हो वो कौन सी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको एक नए कैटेगरी में बांटा, ठीक है। ये नई कैटेगरी हम लोगों ने डिसाइड करी, और वो बेसिस क्या था जिसके लिए हमने किया, वो बेसिस था आई शुड यूज व्हाट ब्लैक, वो बेसिस था डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कि किसी बॉडी के पास डायरेक्शन है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए डायरेक्शन यूज होता है, जिनको बताने के लिए डायरेक्शन यूज नहीं होता है। तो अगर हम इस बेसिस पे अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को वापस से डिवाइड करें तो हम दो कैटेगरीज बना रहे हैं। पहली कैटेगरी है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड कैटेगरी है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जिनके पास डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम कहीं भी जाके टाइम को मेजर करो, तुम उस क्लॉक को कहीं भी जाके रख दो, वो तुमको सिंपली टाइम दिखाएगी, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तुम खुद से घर पे जाके ट्राई, घर पे ऑब्वियसली तो तुम हो ही अभी, तुम घर पे आराम से ट्राई करो। कैसे, तुम अपनी वॉच लो, ठीक है, उस वॉच को अलग अलग डायरेक्शंस पे रख के देखो, कभी ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, अप डाउन, चारों तरफ जितनी डायरेक्शंस में तुम रख सको उतने डायरेक्शन में रख के देखो, और तुम ये देखो कि क्या वो कुछ और चेंज दिखा पा रही है, जैसी चल रही है वो वैसे ही नॉर्मली चल रही है, या फिर कुछ और डिफरेंट, वो कुछ अलग तरीके का मेजरमेंट शो कर रही है। तो ऐसा नहीं होगा जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, पर टेस्ट इट आउट, ठीक है, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो देखो, अगर ऐसा कभी होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर डायरेक्शन पे बेस होती हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, और अगर कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो हम उनको स्केलर क्वांटिटीज़ में रख देते हैं, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि जिन्हें डायरेक्शंस नहीं चाहिए होती हैं, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोल देते हैं। अब देखो इनके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल देखो, मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस, मास, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए,
ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, और अप डाउन जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं उन सभी डायरेक्शन में उनका नंबर सेम होता है, ठीक है, उनको कोई भी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता उनमें, तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द स्केलर, ठीक है। अब देखो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उन्हें हम कैसे बताते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम फोर्स से ले सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, तुमने किसी को धक्का मारा, तुमने अपने फ्रेंड को धक्का मारा, तो तुम जिस डायरेक्शन में उसको धक्का मार रहे हो ना वो उधर की तरफ ही जाके गिरेगा, डेफिनेट सी बात है। तुम उसको ईस्ट में धक्का मारो तो वो ईस्ट में जाके गिर सकता है, अगर तुम उसको वेस्ट में धक्का मारोगे तो वेस्ट में जाके गिर सकता है। तो दैट डिपेंड्स कि तुमने उसको किस डायरेक्शन में धक्का दिया। तो दैट्स वाई जब तुम फोर्स की बात करते हो डायरेक्शन वहाँ है, एग्जिस्ट करती है, तुम फोर्स को बिना डायरेक्शन की डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने फोर्स को किस कैटेगरी में डाला है, वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी में डाला है। तो जैसी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी अगर उनमें डायरेक्शंस है दैट मीन्स वो वेक्टर क्वांटिटीज है, और अगर उनमें डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। अब देखो ये बेचारी बिल्ली क्या कर रही है, वो वेइंग मशीन के ऊपर बैठी है एंड शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट हर वेट, राइट, पर देखते हैं बेचारे के पास होगा नहीं होगा, बहुत हल्की होती है ना बिल्लियाँ। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में हमें क्या क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो नंबर वन थिंग जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पूरा रेड रेड हो जाएगा, हमें ना ब्लू यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखो अब जो नंबर वन पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज have magnitude, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा। जैसे मानो हम मास की बात कर रहे हैं तो मास को हम बोलेंगे कि भाई 5 kg, ठीक है, 5 kg मास बोल दिया है। अब ये जो 5 kg है यहाँ पर ये है क्या, नंबर, ठीक है, और ये जो केजी है ये क्या है, यूनिट। तो यहाँ पे तुमने जो मैग्नीट्यूड लिखा है एक्चुअली में तुम ये मैग्नीट्यूड दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को बोल रहे हो, एक नंबर और दूसरा यूनिट, ठीक है। तो अगर तुम कभी भी सुनोगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़ को बताने के लिए हमेशा एक नंबर और एक यूनिट होना ही चाहिए। जब कभी भी तुम टाइम की बात करते हो तो तुम्हें बताते हो 2 minutes, 5 hours, 6 seconds, तो ये जो तुम सेकेंड्स, आवर, मिनट्स ये सब बोल रहे हो ये यूनिट्स हो गई, ये पूरी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इसका मतलब ये नंबर अकेला नहीं, इसके साथ यूनिट भी, ये पूरा एक चीज़, ये पूरी चीज़ ही है, 5 kg ही क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड में आ जाता है। तो हर एक स्केलर क्वांटिटी में को मतलब बताने के लिए तुम्हें हमेशा मैग्नीट्यूड ज़रूरी होगा, और मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आएंगी, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर वन पॉइंट कि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। नंबर 2 पॉइंट है दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, और वी कैन से दे डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन, दे डू नॉट नीड एनी डायरेक्शन। ये नॉट लिखा है मैंने, तुम्हें कुछ और भी पता लग सकता है, नॉट नीड एनी डायरेक्शन फॉर डिस्क्रिप्शन। मतलब जब हम उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हों, जब हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हो, जैसे तुम्हें घर जाके बताना हो कि मम्मी आज मैंने 2 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है, अब तुमको बोलना है 2 kg। अब डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, जब मम्मी ने सुना कि 2 kg टमाटर खरीदे हैं तो उन्हें पता चल गया 2 kg कितना होता है, क्या होता है, पूरी जानकारी इस 2 kg में है, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यही चीज़ वेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होती, वेक्टर में तुमको स्पेशली डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इनका जो मैग्नीट्यूड है वही इनफ है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर।
नाउ द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम लोगों ने बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से तो सीखा ही है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो बचपन से सीखते आते हैं यानी कि अलजेब्रा, वो ज़रूरी है। सो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, उनको ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्टेड, उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाइड, उनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, एंड डिवाइडेड बाय यूजिंग व्हाट? अलजेब्रा। ठीक है, ये जो अलजेब्रा आप लोगों ने अब तक सीखा है, सिर्फ इससे हम इजीली वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम खुद से सोचो कि मानो तुम और तुम्हारे भाई या भाई बहन जो भी, तुम दोनों ने मार्केट गए हो, ठीक है। तुमको क्या करना था? तुमको लेने थे 2 किलो टमाटर, ठीक है, 2 kg टोमेटो तुमको लेने थे। और तुम्हारा जो सिस्टर, चलो मान लो तुम सिस्टर ही जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी सिस्टर और तुम जा रहे हो, ठीक है। उसने क्या लिया? उसने पोटैटो ले लिया, उसको पोटैटो पसंद थे, उसको वही लेने थे, तो उसने क्या किया? 3 kg पोटैटो ले लिया। अब तुम ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 kg टोमेटो, 3 kg पोटैटो, तो टोटल कितना क्वांटिटी हो गया तुम लोग के पूरे पास? मान लो एक ही बैग में तुमने दोनों चीज़ें रख दी, तो उस बैग का टोटल मास कितना होगा? खुद से कैलकुलेट ऑलरेडी कर सकते हो। क्या हो जाएगा? 2 kg प्लस 3 kg विल गिव यू हाउ मच? 5 kg। सिंपल, हमने ऐसे ही ऐड किया जैसे हम बचपन से करते आए हैं। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जब स्केलर को प्लस माइनस कर रहे होंगे तो हमेशा जो बचपन से करते आए हैं वही करेंगे, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ द थिंग, अगर तुम्हें ये सारी बातें एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता है तो इसका मतलब तुम्हें स्केलर क्वांटिटी अच्छी तरीके से आ गई है, ठीक है। अब तुम इन सभी चीज़ों को देखो और ट्राई टू रिमेंबर, क्योंकि यही सेम टू सेम चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, ठीक है। नंबर 1, सबसे फर्स्ट चीज़, हम पहला पॉइंट स्केलर क्वांटिटी में क्या था कि उनके पास मैग्नीट्यूड होता है। तो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ का भी पहला पॉइंट लिखेंगे और वो पहला पॉइंट ये है, they have magnitude, सिंपल, they have magnitude। और मैग्नीट्यूड का मतलब फिर से वापस से वही क्या, ये फोर्स है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? अगर तुम फोर्स ना, मतलब फोर्स बता रहे हो किसी को 2 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, तो तुमने ये जो 2 न्यूटन बताया है, ये जो 2 न्यूटन बताया है, तो इसमें क्या क्या है? नंबर भी है और इसमें यूनिट भी है ना। तो यहाँ पे नंबर भी है, यूनिट भी है, इसका मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब जब भी तुम मैग्नीट्यूड सुनोगे कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है, जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्या क्या आता है? नंबर भी आता है, यूनिट भी आती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आती हैं। नाउ अब नेक्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 2 पॉइंट, वो ये है, दे हैव डायरेक्शन। एसोसिएटेड विद देम, मतलब उनको बताने के लिए हमेशा एक डायरेक्शन तो होगी ही होगी, बिना डायरेक्शन के उनका डिस्क्रिप्शन अधूरा है, ठीक है। ये हम लोग सीखेंगे, मतलब यहाँ पर जब कभी भी तुम बता रहे होंगे, अभी हमने ये फोर्स का देखा है, वापस से फोर्स का एग्जाम्पल देखो तुम, वापस से देखो फोर्स का एग्जाम्पल, वो है 5 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है।
अब तुम खुद से देखो, ये दोनों ना बिल्कुल बिछड़ नहीं सकते हैं। ये 5 न्यूटन और ये नॉट, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। जब कभी भी हम फोर्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, तब अगर तुमने कभी कभी ये भी सुना होगा ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बस अगर तुमने सिर्फ इतना सेंटेंस सुना होगा तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त तुम्हें कोई डायरेक्शन नहीं बताया जा रहा है, उस वक्त सिर्फ तुम्हें मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन वहाँ है, हमेशा फोर्स के साथ एक डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि तुम कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज से उनकी डायरेक्शन छीन ही नहीं सकते। उनका और उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड, इन लोगों का एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप होती है। वो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ रहते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये जो वेक्टर है क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड साथ ही साथ उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, हमेशा साथ रहेंगे, इंपॉर्टेंटली, नेवर फॉरगेट दिस इज द थिंग। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम अगली चीज़ यहाँ पे सीखेंगे जो तुमने अभी तक नहीं सीखी है, कि जो वेक्टर्स होते हैं, इन वेक्टर क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स, पूरा एक वर्ड वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, साथ ही साथ एंड मल्टीप्लाइड। ये जो होते हैं बाय यूजिंग एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा। इन लोग के लिए ना एक स्पेशल अलजेब्रा जनरेट किया, सोचो ये कितने महान है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अलग से अलजेब्रा बनाना पड़ा। सोचो कितना महान है ये, बिल्कुल, कि मतलब हाँ, हमको ये अलजेब्रा बनाना पड़ा। तो जब कभी भी तुम वेक्टर्स को ऐड करोगे, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम वो नॉर्मली प्लस माइनस बचपन का सीख के आए हो, वो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे यूज़ होगा स्पेशल वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम लोगों ने नोटिस ही नहीं करी होगी, वो ये कि यहाँ पे देखो मैंने डिवाइडेड नहीं यूज़ किया हुआ है ना। डिवाइड नहीं यूज़ किया हुआ है, इसका क्या रीज़न है? वो ये है क्योंकि कभी भी तुम दो वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। कोई बच्चा तुमको उल्लू भी बनाए ना कि भैया ये वेक्टर्स को हम जो है डिवाइड कर देते हैं, एक वेक्टर को एक वेक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तुम उसको बोलो कि पागल है क्या? नहीं हो सकता, डिवाइड हो ही नहीं सकता, वेक्टर्स को नहीं कर सकते हम लोग डिवाइड, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं, वो ये, अभी रेड हो गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि वेक्टर के अंदर डिवीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी कैन नॉट डिवाइड टू वेक्टर्स, हम उनको डिवाइड ही नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंटली नहीं कर सकते। तुम कैसे डायरेक्शन को डायरेक्शन से डिवाइड करोगे? तुम ईस्ट को नॉर्थ से डिवाइड करके बताओ, नहीं हो सकता। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी जो तुमको जाननी थी, बिल्कुल जाननी थी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो चलो हमने देख ली, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वेक्टर्स होते हैं ना, दे मस्ट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा लॉज, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल प्लस माइनस जो हमने अब तक सीखा वो तो नॉर्मल अलजेब्रा था, फिर हमको वेक्टर्स के लिए नया अलजेब्रा बनाना पड़ा, वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो, ये जो वेक्टर अलजेब्रा है इसके अंदर जैसे ऐड होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये लॉज है उनके, ठीक है। अगर कोई वेक्टर इन लॉज को फॉलो नहीं करता, ठीक है, अगर कोई वेक्टर इन लॉज को फॉलो नहीं करता तो हम उनको वेक्टर की कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे? इसका मैं अच्छा खासा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो क्लास में कोई शैतान बच्चा हुआ, वो फॉलो नहीं करता रूल्स, जैसे शांत बैठो, ध्यान से पढ़ो, नहीं फॉलो करता रूल्स, तो उसको क्लास के बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही इस वेक्टर्स के साथ भी होता है कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो इन वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, तो
तो हम उसको वेक्टर कैटेगरी से ही बाहर निकाल देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो इसलिए, पहले मैं लिख दूँ इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देखो तुम, मानो यहाँ पर एक वायर आ रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 2 एम्पियर का करंट है। करंट की यूनिट पता है ना, एम्पियर रहता है, 2 एम्पियर, है ना। तो मानो कि इस वायर के अंदर से 2 एम्पियर का करंट कहाँ जा रहा है? ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, एक दूसरा वायर हमने यहाँ से लिया और उसके अंदर आ रहा है 3 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, क्या करंट जा रहा है, इसके अंदर से 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका वेक्टर एडिशन करूं, ऑब्वियसली डायरेक्शन है इसके पास, मैग्नीट्यूड है इसके पास, देखो ये मैग्नीट्यूड, नंबर, यूनिट, डायरेक्शन, तीनों चीजें हैं, तो इसे तो वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि क्यों ये वेक्टर कैटेगरी से बाहर निकल गया। वो देखो, जब कभी भी एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इन लोगों के लिए इसका जो रिजल्टेंट आना था ना, वो आना था ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। क्यों ऐसे? क्योंकि जब कभी भी हम किन्हीं 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो फिर हम उनके लॉज को फॉलो करते हैं, और उसका लॉ जो तुम लोग को भी नहीं पता है, तो तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि अगर देखो इस 3 एम्पियर को मैं आगे बढ़ा देती हूँ तो वो इस ब्लू लाइन के पास जाएगा, है ना, उसकी तरफ जाएगा। और उसके बाद जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूंगी तो मुझे एक डायरेक्शन, ये वाला वेक्टर मिलेगा, ये फाइनल वेक्टर है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला वेक्टर है, ये दिस इज द रिजल्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसे बोल सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इधर आना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन सोचो, हवा में से थोड़ी करंट जाता है? नहीं जाता ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी वायर जा रहा है, अगर ये वायर इधर जा रहा है तो फिर यहीं से जाएगा करंट, वो भी 5 एम्पियर। सोचो तुम अब खुद से, जहाँ ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ वायर जाएगा करंट भी उसके अंदर से वहीं चलता जाएगा, बाहर से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि तार के अंदर से बाहर चला गया और करंट दूर दूर जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द थिंग, इसी कारण की वजह से वेक्टर से निकाल दिया, क्योंकि वो उसके लॉ को फॉलो ही नहीं करता था। वेक्टर का लॉ, जो एडिशन का लॉ है, वो ये कहता है कि जब कभी भी हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से, यानी ये जो वेक्टर जा रहा था इसको मैंने आगे बढ़ा के जोड़ा, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन मिलना चाहिए था, यहाँ पे उसका जो आना चाहिए था रिजल्टेंट, ठीक है, उसका रिजल्टेंट करंट वहाँ मिलना चाहिए था, बट एक्चुअली में वहाँ तो मिल ही नहीं रहा है। हमें कहाँ मिल रहा है? जहाँ जहाँ ये ब्लैक कलर का वायर जा रहा है वहाँ वहाँ हमको मिल रहा है। ऐसा मैं करती हूँ, इसे रेड की जगह पे ब्लैक ही बना देती हूँ, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये जो है वो क्या है? रियलिटी है। असलियत में यहीं से करंट जाता है, जहाँ जहाँ वायर वहाँ वहाँ करंट, लेकिन वो क्या करता है? एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं करता है, वो हवा में से नहीं जाता है, इसीलिए हमने उसे क्या किया? वेक्टर कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। ऐसा भी होता है। तो दिस इज द मेन एग्जांपल। इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा तुम याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर कैटेगरी में डालते हैं, वेक्टर्स में नहीं डालते। हालांकि इस बेचारे के पास करंट मतलब मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी इसे क्लास के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तुमको पता होनी चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इनका, जैसे आप मानो हम एरिया पढ़ते हैं, किसी भी स्क्वायर का एरिया, सर्कल का एरिया, है ना, रेक्टेंगल का एरिया, वो सब अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है, इसमें ये जो एरिया है वो अभी तक हम बोलते आए थे कि स्केलर है, स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तुमने बोला एक ट्रायंगल है, उसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो ये जो 4 मीटर स्क्वायर है ये उसका एरिया है, सिंपल समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे, 11-12 में जाओगे और आगे पढ़ाई करने की कोशिश करोगे फिजिक्स में, तो फिर तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो एरिया है इसको भी हम एक वेक्टर ही मानते हैं, इसकी अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है।
तो वो सब तो बात की बात है। बट अभी तुम्हें इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान रखना है वो ये कि इलेक्ट्रिक करंट को क्यू कैटेगरी से बाहर निकाल दिया, वेक्टर कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और हम क्या वेक्टर्स डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता, ये बात तुमको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जो वेक्टर्स हैं उनको स्पेशली एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि उनको ऐड करने के लिए, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनको एक स्पेशल अलजेब्रा मिला जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है। और इन लोग के पास हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन होती ही है, मतलब बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें वेक्टर्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को, मतलब ये सिर्फ 5 पॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो याद रखेगा वो बेस्ट स्टूडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, वेक्टर्स को कैसे बताते हैं। देखो जब कभी भी तुम स्टेटमेंट लिख रहे होंगे, नंबर 1, अरे नंबर 1 जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बुक में, ठीक है, सिंपली बुक में अगर लिखा होगा ये वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है, तो उस वक्त तुमको क्या रिप्रेजेंटेशन करना होगा, क्या डिनोशन करना होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय, ठीक है। चलो मानो मैं फोर्स का वापस से एग्जांपल ले लेती हूँ, तुम्हें बताना है एक फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसको दिखाने के लिए कॉपी में कैसे दिखाओगे कि ये वेक्टर है कि नहीं है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम लिखोगे F जो कि फोर्स को शो करता है और बनाओगे उसके ऊपर एक छोटा सा एरो, ठीक है। जैसे ही तुमने ये F के ऊपर एरो बना दिया सब समझ जाएंगे ये एक वेक्टर है, ठीक है, सब समझ जाएंगे, ओके। अब ऐसा मत बोलो कि जिसको नहीं पता वो भी समझ जाएगा, पता तो होना ही चाहिए ना, तभी समझेंगे, है ना। और देखो इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे हम डिनोट कर सकते हैं, वो ये है कि हमने F लिखा, ठीक है, और इस F को क्या कर दिया, मोटा कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। पर हमारे पास इतना घिसने का तो टाइम होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एरो वाला ज़्यादा इजीली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि फटाफट से बन जाता है वो, है ना, हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कई बार जो बुक्स होती हैं जब कभी भी उनमें वेक्टर्स लिखा हुआ होता है, डिनोट किया हुआ होता है, तो वो बोल्ड लेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एक तो F के ऊपर एरो से शो कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड लेटर से शो कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड लेटर से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो ठीक है, फिर भी ये लिखने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज हो गया। इसका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, इसे हम डायग्राम के लिए भी बोल सकते हैं। जब कभी भी तुम्हें वेक्टर्स का डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, या फिर ज्योमेट्रिकली हम इसे जिसे बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या करते हैं, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे एरो लेके खड़ा है ना, बिल्कुल वही काम हम भी करते हैं, हम एक एरो बनाते हैं, ठीक है, हम एक एरो बना देते हैं, सिंपल, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल ऑफ द एरो, ठीक है। अब ये जो टेल होती है, मतलब उसकी जो पूंछ होती है, ये टेल और ये हेड, ठीक है। ये जो टेल है ये बताती है कि कहाँ से वो जो एरो है, वो जो वेक्टर है वो आ रहा है, ठीक है। और ये जो हेड है वो ये बताता है कि ये वेक्टर कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है डायरेक्शन, ये जो हेड है इसका, ये डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है कि भैया उस तरफ जा रहा है। अगर जैसे मुझे डिनोट करना है, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताती हूँ, पहले यहाँ देखो कि इसका एरो का जितना लेंथ होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मतलब अगर ये लेंथ 5 है तो हम इसे बोलेंगे 5 न्यूटन का फोर्स इस लेंथ के बराबर 5 न्यूटन है, और हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब कभी भी हमें मैग्नीट्यूड दिखाना होता है, नंबर दिखाना होता है, तो वो नंबर इसकी लेंथ से बताते हैं, ठीक है। और जब हमको कोई डायरेक्शन शो करनी होती है तो वो हम उसका टेल और हेड से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे डायग्राम के अंदर तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी शो हो गया और तुम्हारे पास डायरेक्शन भी शो हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तुम खुद भी साथ साथ इसको कॉपी में बनाने की कोशिश करो जो मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 लो, 5
न्यूटन, न्यूटन नहीं, कितनी बार फोर्स लेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ईस्ट नहीं, कुछ नई डायरेक्शन ले लेते हैं अभी, हम ले सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड साउथ। ठीक है, तो चलो अब हमें इसको, इस वेक्टर को बताना है, डिनोट करना है। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड साउथ है, तो हमको पता होना चाहिए साउथ का है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायग्राम बनाएंगे, जो कि यहाँ पे है ईस्ट, यहाँ पे है वेस्ट, यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ। साउथ यहाँ है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें 5 मीटर पर सेकेंड साउथ बताना है। तो 5 तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इतनी बड़ी लंबी लाइन बनाएंगे जो कि 5 को शो करेगी। और मैंने क्यों किया है, नीचे की तरफ क्यों बनाया है जानबूझ के, क्योंकि साउथ नीचे की तरफ है। अभी तो पेपर में तो नीचे की तरफ है ना, मतलब आपका स्क्रीन पे। तो ये जो 5 है, ये जो नंबर बता रहा है वो उसका लेंथ बता रहा है ना, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, वो लेंथ बता रहा है। एंड दिस एरो इज शोइंग द साउथ डायरेक्शन। तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगी। अब ये पूरा वेक्टर प्रॉपर है और इसे हम बोल देंगे 5 मीटर पर सेकेंड साउथ। ठीक है, ये समझ में आया, वेरी गुड। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल जो कि थोड़ा हार्ड है उसको लेते हैं। वो एग्जाम्पल है 60 डिग्री, तुम्हें 60 डिग्री साउथ ईस्ट। हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 5 मीटर, देखो ये है वो एग्जाम्पल, 5 मीटर 60 डिग्री साउथ ईस्ट। ये तुमको पता है 60 डिग्री साउथ ईस्ट ये क्या चीज़ है, यही डायरेक्शन है। सोचो, ये जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है ना, ये इसके अंदर यही पूरा डायरेक्शन है, यही पूरा का पूरा डायरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, 60 डिग्री साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और जो 5 मीटर है वो क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम इसको कैसे शो करेंगे, हमको ये बात पता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। अब की बार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक साइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बैक साइड में, देखो अभी मैं वापस से बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, साउथ और ईस्ट, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट इन दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो हमें यही करना होगा। ये है हमारी बेस लाइन, ठीक है। ये वेक्टर नहीं है, ये साउथ ईस्ट वाला वेक्टर नहीं है। जो हमारा असली वेक्टर है उसे मैं ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ, ठीक है। ये है वो वेक्टर, दिस इज द वेक्टर जो कि 5 है ना। तो ये जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर को शो करेगी, ठीक है। ये जो इसकी लेंथ है ये 5 मीटर को शो करेगी। एंड ये जिस तरफ जा रहा है वो साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा, दिस इज द एंगल 60 डिग्री, है ना। और ये जो हमारा डायरेक्शन है, ये जो मेन हमारा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरो है, दिस इज आवर मेन एरो जो कि हमको बता रहा है क्या, 5 मीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को शो करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमको इवेंचुअली ये फाइनल ही तरीका है जिससे हम डायग्राम के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस शुड बी क्लियर, क्योंकि हम डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्पल्स में इनको यूज करेंगे। ऑलराइट, अब हम बताते हैं इसका प्रॉपर्टीज की, वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, वेक्टर्स की सबसे नंबर 1 है, वेक्टर हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एक वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफिक रहती है। कैसे, मानो कि एक वेक्टर है, ठीक है, एक फोर्स है जो कि ईस्ट की तरफ लगाया जा रहा है, तुमने ईस्ट की तरफ उसको धक्का मार रहे हो, तो ईस्ट की तरफ तुम फोर्स लगा रहे हो, तो वो ईस्ट की तरफ ही जाएगा अनलेस कि कोई और भी उसे किसी और डायरेक्शन में धक्का मार दे। तो इसका मतलब कि अगर तुमने किसी एक डायरेक्शन में ऑलरेडी धक्का मार चुका है तो वो उसी डायरेक्शन में जाते जाएगा, ठीक है। तो उसका चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। यही है वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात, कि वो स्पेसिफाइड हो चुका है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा जब तक कि कोई और उसे कहीं और डायरेक्शन में ना धक्का मार दे, ठीक है। तो ये तरीका है कि जो वेक्टर है वो हमेशा एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही होगा।
ठीक है। नंबर 2 इट ऑबेज लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि हमेशा वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को फॉलो करता है, जो फॉलो नहीं करेगा उसे वेक्टर की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। एंड देयर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा, नंबर्स में, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि चाहे तुम 2 में 3 ऐड करो, चाहे तुम 3 में 2 ऐड करो, बात बराबर है। दैट इज सेम इन वेक्टर्स टू, है ना। तुम चाहे ए को बी में ऐड करो, चाहे बी को ए में ऐड करो, दोनों बराबर इक्वल रिजल्ट ही तुमको देंगे। सो दिस इज द थिंग कि ये जो 3 हम लोगों ने लॉज देखे हैं, नॉट लॉज, प्रॉपर्टीज वी कैन से, कि इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब देखो, अब 2 तरीके के वेक्टर मैं तुमको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स तुमको पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहला है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सोचो, जीरो से समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ जीरो तो होगा ही होगा इसमें, है ना। देखो, एक नल वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका जो नंबर है ना, हम अब तक नंबर लिखते रहते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग अभी तक? हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे 5 मीटर वेस्ट, है ना। ये हमने एक वेक्टर लिखा है 5 मीटर वेस्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अब ये जो मैग्नीट्यूड है इसका 5 मीटर, इसको मैं अगर 0 मीटर वेस्ट कर दूं, इसको अगर मैं 0 मीटर वेस्ट कर दूं तो क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 0 कर दिया। तो अब ये जो है ना, ये जो वेक्टर है ये नल वेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया है ना। अब देखो, 0 एंड द डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट। क्यों इनडिटर्मिनेट? क्योंकि अभी तक वो किसी डायरेक्शन में गया ही नहीं। 0 मीटर है, वो वहीं का वहीं है। कोई बॉडी अगर एक रेस्ट में है तो दैट इज द थिंग कि वो कहीं, उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, कि तुम बता ही नहीं सकते कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। कोई अगर एक पॉइंट है, 0 का मतलब कि कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की, उसका कुछ लेंथ नहीं है, तो इसका मतलब वो एक पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्शन कहाँ है, कोई बता कैसे पाएगा? दिस इज नॉट डिटर्मिनेट या फिक्स या फिर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को क्या बोल दिया है, इनडिटर्मिनेट बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड 0, साथ ही साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो इनडिटर्मिनेट है। इसका मतलब जो नंबर है वो तो 0 हो गया और जो डायरेक्शन है वो किसी को पता ही नहीं। तो अगर मैं इस वेक्टर को एक नल वेक्टर बनाना चाहूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वेस्ट को कैंसिल कर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अब क्योंकि ये वेक्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक एरो भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो 0 मीटर हमने अभी लिखा है, ये जो 0 मीटर हमने अभी लिखा है, ये बन गया है मेरा नल वेक्टर, ठीक है। अब ये नल वेक्टर बन गया है। चलो देखो, इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी 0 इन द सेंस दैट ऑर्डिनरी 0 हैज नो डायरेक्शन। ऑब्वियसली 0 इज 0, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। दैट ऑर्डिनरी 0 हैज नो डायरेक्शन बट इट हैज अ डायरेक्शन विच बिकम्स इनडिटर्मिनेट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स 0 मैग्नीट्यूड। 0 की वजह से उसको पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, कहाँ जाएगा, नहीं पता, इसलिए उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया है क्या, एक नल वेक्टर बोल दिया है, या फिर 0 वेक्टर बोल दिया है। अब देखो, नल वेक्टर को हम हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, 0 और उसके ऊपर एक एरो, उसी से हम शो कर देते हैं, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है डिस्प्लेसमेंट। तुमको ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से तुम कितनी दूर तक गए, तुम्हारे फाइनल पोजीशन तक। तो तुम 0 से लेके जितना दूर गए हो, ये तुम्हारा क्या हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में। अब मानो तुम कहीं गए नहीं, तुम वहीं पे ही खड़े हो, तो तुम्हारा कोई डायरेक्शन थोड़ी होगा, तुम वहीं पे हो ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। तो इसी वजह से हम इसे बोल देंगे क्या, एक नल वेक्टर, क्योंकि अभी तुम रेस्ट पे हो। तो जब कभी भी हम किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो जो कि स्टेशनरी हो, रेस्ट पे हो, तो वो क्या होगा, एक 0 वेक्टर होगा, ठीक है, एक नल वेक्टर होगा। अब एक और वेक्टर मैं तुमको बताने जा रही हूँ, वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट से तुमको कुछ पता चला? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1, ठीक है। तो इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है ना, यूनिट मैग्नीट्यूड। अरे देखो, है ना, देखो, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। जैसे जो 5 मीटर वेस्ट है, ये यूनिट वेक्टर कब बनेगा, जब मैं इसके 5 को 1 बना दूं, है ना। तो ये
1 मीटर वेस्ट बन जाएगा। अब ये 1 मीटर वेस्ट है ना, ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका नंबर मैंने 1 बना दिया। अब 1 कैसे बनेगा, 5 से डिवाइड करके बनेगा ना, 5 को मैं 1 बनाऊंगी तो मुझे क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मुझे इस 5 को 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ा 5 से। यहाँ पे अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 करूँगी तो मुझे 1 मिलेगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यूज़ होगी क्या बनाने में, इसका फॉर्मूला बनाने में। कैसे, देखो अभी मैं बताती हूँ तुमको कि अगर तुम कभी भी किसी भी एक यूनिट वेक्टर को लिखोगे, कैसे लिखते हैं, ए कोई भी वेक्टर जिसको तुम बताना चाहते हो वो, और उसके ऊपर एक छोटी सी कैप, हम इसको कैप पहना देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर को बताने के लिए मुझे कैसे बताना होगा, यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर था ये पूरा का पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। देखो मैंने 5 से डिवाइड किया है तभी जाके मुझे 1 मिला ना, तो यहाँ पे मैंने इस वेक्टर को इसी वेक्टर से डिवाइड कर दिया है, इसके मैग्नीट्यूड से, इसके नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो मुझे मिलेगा क्या, एक यूनिट वेक्टर। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैंने इतना अजीब सा जेल में बंद करके लिखा हुआ है, ये इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ नंबर से डिनोट कर रही हूँ, डायरेक्शन से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते है ना, हमने सीखी थी ये बात कि हम वेक्टर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, डायरेक्शन ऐसी की ऐसे है ना, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो सेम रहती है यूनिट वेक्टर की, और जो नंबर है जो वो है वो 1 बन जाता है। बस ये यूनिट वेक्टर का हमको इतनी सी ही बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड whose डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर था वेस्ट, सेम टू सेम है, वेस्ट का वेस्ट ही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। और देखो ए और उसके ऊपर छोटा सा कैप हमने लगा दिया है, तो दैट इज द थिंग कि ए कैप से हम इसको डिनोट करते हैं। हमने इसे यूनिट वेक्टर बना दिया है, किसका, ए का। ये जो ए है उसके ऊपर वेक्टर यानी कि वो वेक्टर है, और अगर कैप लगा दिया है तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ए कैप बोलते हैं, कई लोग ए हैट भी पढ़ते हैं, कई लोग ए कैरेट भी पढ़ते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अब 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो तुमको पता होनी चाहिए, वो क्या, अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। हमेशा किसी भी एक वेक्टर का डायरेक्शन अगर पता करना हो, सिर्फ डायरेक्शन पता करना हो, तो हम उसे यूनिट वेक्टर अगर बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो हमने 1 बना दिया, तो फिर क्या बन गया, वो अकेला डायरेक्शन बच गया ना उसके पास विद 1 मैग्नीट्यूड, है ना। और एक और बात कि यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो 1 है, वेस्ट है, ये तो इसी की यूनिट है, वेस्ट तो पहले वाले वेक्टर की यूनिट होती है, तो यूनिट वेक्टर की तो डायरेक्शन ही नहीं हुई, है ना, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आज पढ़ी, स्केलर के बारे में, वेक्टर के बारे में, ठीक है, ये आगे आके आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमेशा हेल्पफुल होती ही है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको ट्राई करना है कि कम से कम 5 to 6 वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिस्ट आउट कर सके, और कम से कम 5 to 6 स्केलर क्वांटिटीज़ को आप पॉइंट आउट कर सके, लिस्ट आउट करो। ठीक है, कोशिश करो एटलीस्ट 2 वेक्टर्स को डिनोट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, और डेफिनेशन तो तुमको पहले से पता होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें रिमेंबर करो, स्टडी करो, राइट, एंड डू नॉट फॉरगेट कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इन लोग की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वेक्टर स्केलर्स के, ट्राई देम आउट, उन सभी को ट्राई करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और जितने भी लोगों को तुम बता सको इसको कि इतना यहाँ पे पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेकर, स्कूल एग्जामिनेशंस को लेकर, सबको बताओ जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छा एक रैंक लेकर आना चाहते हैं, उन सभी को बताओ, हेल्प करो सबकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।